Hello everyone. Now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the topic that is management of agricultural waste अर्थात कृषि के अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन. The particular topic related to B.Ed semester 4 optional paper number 13 issues of conservation and environmental regeneration in unit 2. As you know that management of the agricultural waste, it is most important and vital for the farmer. आप सभी जानते हैं ये यानी कृषि के अपशिष्ट पदार्थों का सही प्रबंधन एक किसान के लिए अति महत्वपूर्ण है. अगर कृषि के अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन सही तरीके से हो तो किसी भी प्रकार की प्रदूषण नहीं होता है, यानी पॉल्यूशन पूरी तरह से उस पर नियंत्रण किया जा सकता, पॉल्यूशन नहीं होता है. एलॉन्ग विथ साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ फर्टिलिटी यानी सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट होती है वो भी बढ़ जाती है. चाहे शुगर केन की खेती हो या पैडी धान की खेती हो या गेहूं की हो, सभी में कुछ ऐसे एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं जो कि अगर खेत में ही छोड़ दिया जाए तो नेचुरली लीड्स टू लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम स्पेशली एट द सॉइल एंड आल्सो इफेक्ट द रेट ऑफ कल्टीवेशन इन द फर्दर और नेक्स्ट ईयर. अगर उसे छोड़ दिया जाए तो निश्चित ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो घटती ही है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि आने वाले जो वर्षों में खेती जो होती है उस भूमि में वो भी पूरी तरह से प्रभावित होती है. तो एग्रीकल्चरल वेस्ट का सही प्रबंधन क्या हो, किस प्रकार से हो, यह महत्वपूर्ण है. अगर प्रबंधन की बात करें तो सबसे अति महत्वपूर्ण है रिसाइकिल रीयूज की थ्योरी पर काम की जाए, क्योंकि ये जो 3 R होते हैं वह महत्वपूर्ण है: रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज. इफ यू हैव टू एम्फसाइज दिस 3 R, अगर आप सभी लोग अगर इस 3 R पर विशेषकर ध्यान दें, खासकर फार्मर जो किसान हैं, तो निश्चित ही इसका सही प्रबंधन, कृषि के जो अपशिष्ट पदार्थ उनका प्रबंधन हो सकता है. आप प्रयास ये करें कि कम से कम उस प्रकार की चीज़ों का उत्पादन हो. दूसरी चीज़, उनका रीसाइकिल, अगर उत्पादन हो भी उनका रीसाइकिल किया जाए तो यह अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना काम संभव नहीं होता है. और साथ ही साथ उससे ये भी एक फ़ायदा होता है कि बहुत प्रकार के ऐसे कंपोस्टिंग कुछ खाद्य पदार्थ को हम तैयार कर सकते हैं उससे, जिससे कि खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइज़र हैं उनका प्रयोग न करके बल्कि नेचुरल फर्टिलाइज़र का उपयोग करके खेत की उर्वरा शक्ति यानी रेट ऑफ फर्टिलिटी को इन्हांस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि रेट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है. तो मैं अब इन सभी चीज़ों को और आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ. Now, again welcome to video lecture class B.Ed semester 4 paper 13 optional paper issues of conservation and environmental regeneration. Now, management of agricultural waste. First introduce the particular topic. Introduction. The proper management of waste from agricultural operations can contribute in a significant way to farm operations. Waste management helps to maintain a healthy environment for farm animals and can reduce the need for commercial fertilizers while providing other nutrients needed for crop production. If the waste are not properly handled, they can pollute surface and groundwater and can contribute to air pollution. Next point, the waste which is reduce, recycle, make it usable for different purposes is a waste management. Now next one, process of management. Number 1 generation, number 2 collection, number 3 transportation, number 4 treatment process, and number 5 disposal. Now number 1 generation. India is one of the richest country in the agricultural resources. The major quantity of solid waste generated from agricultural sources are sugarcane, paddy, wheat, straw, and husk.
comma, waste of especially, that means those types of materials, that is vegetable, food products, tea, oil production, jute fiber, groundnuts, shell, wooden mill waste, coconut husk, cotton, cotton stock, etc. Now next, collection. Waste like fruit and vegetable waste are collected from houses called domestic waste. Waste collected from road, street or side. Also, that means the particular waste like dry refuse and green waste, animal dung from the agricultural field. Now next, transportation. Waste collected from the side of road, agricultural field, all are transported to decomposed site and for further treatment by truck and tailor's cart, etc. Different types of waste are collected and then transported for further treatment, and the waste which is not used indirectly disposal to the sanitary land. Waste are not burned in open air, so it is then transported to incineration. Now next point, that is treatment process. Various treatment processes are performed on agricultural waste are as follows. Number 1, when dealing with agricultural waste, we must follow health and safety regulation. We should provide written instruction for storing and disposing of each of the waste, that is type of waste we produce. We must dispose of waste if we have determined that we cannot use prevention, preparation of reuse, recycle or any other recovery method. Treatment process. Number A, composting, and number B, recycling. Composting is a method in which organic matter present in agricultural waste is decomposed by aerobically, anaerobically, through a biochemical process and converted into humus. Composting is divided into three-step operation. Number 1, preparation of agricultural waste. Number 2, decomposition, and number 3, product preparation and marketing. Now number 2, recycling. Process to change waste into new products is called recycling. Prevent waste of potential useful materials, reduce and consumption of potentially useful materials, reduce the consumption of fresh raw materials, reduce energy usage. Next point, reduce air pollution from incineration and waste pollution from land filling. Lower greenhouse gases emission, key components of modern waste reduction, and is the third component of reduce, reuse and recycle. Now next one, disposal. It is most important and vital because all types of agricultural waste, it should be disposed for the betterment of the further use of the particular land. If we have to fail the particular waste for disposal, that means leads to the pollution and various types of problems. So disposal is the most important process. Now last one is benefits of agricultural waste management. Number 1, the reuse of animal waste in farming operation can reduce the quantity and handling cost of commercial fertilizers. Number 2, the contribution of animal waste increases the organic matter content of soils, which increases nutrients availability for crops and improve the water holding capacity. Number 3, good waste management reduces the instances of well water contamination and minimizes surface water pollution. Now अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूं। कृषि अपशिष्ट का प्रबंधन। सबसे सर्वप्रथम परिचय। कृषि कार्यों से कृषि कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। अपशिष्ट प्रबंधन के जो खेत होते हैं, खासकर एक स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में मदद करता है। फसल उत्पादन के लिए अन्य आवश्यक पोषक जो पदार्थ होते हैं वो भी
खेती को यानी मिट्टी को या उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। वैसे कुछ जानवर जो कि खेत में आप जानते हैं कि अपने भोजन के लिए चारागाह के रूप में उपयोग करते हैं, वह भी अपशिष्ट पदार्थों का सही प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं या निभाते हैं। यदि कचरे को यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका ठीक से प्रबंधन न हो तो उससे सतह और साथ ही साथ भूजल भी प्रदूषित होता है और उसके अलावा वायु प्रदूषण भी हो सकता है। अतः आवश्यकता इस चीज़ की है कि कैसे इन्हें रीयूज या रिसाइकिल यानी पुनर्चक्रण के द्वारा वो जो पार्टिकुलर प्रक्रिया या पार्टिकुलर स्थान जो है उसको पूरी तरह से उपयोग युक्त बनाया जाता है या कैसे बनाया जा सकता है। अब बात होती है प्रबंधन की प्रक्रिया। नंबर 1 पीढ़ी, नंबर 2 संग्रह, नंबर 3 परिवहन, नंबर 4 उपचार की प्रक्रिया और नंबर 5 निपटारा। सबसे पहले पीढ़ी की मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत भारत, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत कृषि संसाधनों में सबसे अमीर देशों में से एक है। कृषि स्रोतों से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की बड़ी मात्रा में गन्ना या उससे संबंधित जो उसके डंठल होते हैं, धान गेहूं के भूसे, भूसी, सब्जियों, खाद्य पदार्थों के उसके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, चाय, तेल या जूट फाइबर या मूंगफली के जो खोल होते हैं, जो छिलका हम लोग समझते हैं, लकड़ी मिल से अपशिष्ट पदार्थ या नारियल की भूसी, कपास डंठल इत्यादि, ये सभी जो है स्टेप टू स्टेप यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा ही अपशिष्ट पदार्थ के रूप में आते हैं। सेकंड में बात करते हैं संग्रह। फलों और सब्जियों के कचरे जैसे अपशिष्ट को घरेलू ये तौर पर हमेशा उपयोग करते हैं और उन्हें एकत्र कर कर जहाँ तहाँ जो वह फेंक दिया जाता है। ये भी जो है एक तरह से संग्रह का आधार होता है। कृषि क्षेत्र से सूखा कचरा, हरा कचरा या पशुओं का गोबर जैसा भी एकत्र किया जाता है, वो भी अपशिष्ट पदार्थ के रूप के अंतर्गत आता है। तीसरा मैं बात करूँ परिवहन की, तो सड़कों के किनारों से एकत्र किए गए कचरे, अपशिष्ट पदार्थ या कृषि क्षेत्र सभी को विघटित करने के लिए एक स्थल तक ले जाया जाता है। ट्रक, टेलर यानी जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें मदद करती हैं और जो उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विभिन्न प्रकार के कचरे को एकत्र करके आगे फिर उन्हें ले जाया जाता है। इस प्रकार से गाड़ियों के द्वारा दूसरे जगह ले जाया जाता है। उन सभी जो कि संग्रह किए हुए पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, उन्हें एक निश्चित स्थान पर जाकर डिस्पोज किया जाता है, यानी वहाँ पर समाप्त किया जाता है उन्हें। आप सभी जानते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों को, जो कृषि के अपशिष्ट पदार्थों को खुली हवा में नहीं जलाया जा सकता है और न ही जलाशयों में छोड़ा जा सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि सही तरीके से इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उन्हें समाप्त किया जाए। अब आगे जो आते हैं वह महत्वपूर्ण है उपचार की प्रक्रिया, यानी कंपोस्टिंग सबसे महत्वपूर्ण है। उपचार की प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पर विभिन्न उपचार की प्रक्रिया निम्नानुसार की जाती है। कृषि अपशिष्ट से निपटने के लिए हमें स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का भी पालन करना चाहिए। हमें प्रत्येक प्रकार के कचरे के भंडारण और निपटान के लिए कुछ दिशा निर्देश को भी ध्यान रखना चाहिए, उसे प्रदान करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। खासकर हमें रोकथाम के लिए पुनर्चक्रण या जो दोबारा उपयोग करने, पुनर्प्राप्ति, ये जो विधि होती है अति महत्वपूर्ण हो सकती है, जो कि हम हमेशा उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन इसे रोकथाम के लिए उपयोग करना चाहिए। उपचार की प्रक्रिया में कंपोस्टिंग यानी खाद जो कि तैयार करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कंपोस्टिंग एक ऐसी विधि है जिसमें कृषि अपशिष्ट में मौजूद कार्बनिक पदार्थ जैव रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से एरोबिक और एनारोबिक रूप से विघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। 3 चरणों में खाद को विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि सर्वप्रथम उसे तैयार करना, यानी कचरे से जो कि कृषि के अपशिष्ट पदार्थ हैं उसके साथ उसे तैयार करना, फिर उसे डिकम्पोज करना यानी उसके रूप को परिवर्तित करना, जिसको कि डिकम्पोजिशन कहते हैं, और तीसरा उत्पाद की तैयारी जो कि प्रिपेयर्ड हो गया और उसे कैसे जो है सही स्थान पर पहुंचाया जाए, यानी खेती करने वाले स्थान पर कैसे पहुंचाया जाए। दूसरा जो आधार है उपचार की प्रक्रिया में वह है पुनर्चक्रण। कचरे को या अपशिष्ट पदार्थ को नए उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया संभावित उपयोगी सामग्री को बर्बादी से रोकने का एक अच्छा आधार है। कच्चे कुछ माल ऐसे कुछ खपत वाले पदार्थ होते हैं, ऊर्जा जिसमें कि कम से कम मात्रा में उपयोग किया जा सकता है और उन्हें दूसरे रूप में कन्वर्ट करके यानी परिवर्तित करके उपयोगी बनाया जा सकता है। भूमि के भराव से वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को कम करना सबसे आधार
और महत्वपूर्ण माने एक स्थिति या एक महत्वपूर्ण आधार कहा जा सकता है, जिससे कि पुनर्चक्रण यानी रिसाइकिल के रूप में वो काम हो सकता है। आधुनिक अपशिष्ट में प्रमुख घटक यानी कैसे उसे रिड्यूस किया जाए और कैसे पुनर्उपयोगी बनाया जाए, इस पर जो है वह सबसे महत्वपूर्ण काम करने की आवश्यकता है। लास्ट में निपटारा, वैसे पदार्थ जो कि अब योग्य नहीं हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर या कैसे दोबारा उन्हें उपयोगी बनाया जाए, ये अति महत्वपूर्ण है और इस प्रकार से उनका निपटारा किया जा सकता है। अगर उन्हें उसी अवस्था में छोड़ दिया जाए तो पोल्यूशन बढ़ सकता है और खेती योग्य जो भूमि है वह पूरी तरह से उसकी शक्ति छीन हो सकती है, इसलिए उसका सही से डिकम्पोजिशन होना अति आवश्यक है। अब लास्ट में कृषि अपशिष्ट प्रबंधन के लाभ। कृषि कार्यों में पशु अपशिष्ट का पुनः उपयोग वाणिज्यिक उर्वरकों की मात्रा और मूल्य निर्धारण लागत को कम कर सकता है। नंबर 2, पशु अपशिष्ट के योगदान से मिट्टी की कार्बनिक पदार्थ सामग्री बढ़ जाती है, जिससे फसलों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है और जल धारण क्षमता में भी सुधार होता है, यानी जल को एकत्र करने में भी सुधार हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पशु के जो गोबर होते हैं वह अति उपयोगी होते हैं और खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं। अच्छा अपशिष्ट प्रबंधन अच्छी तरह से पानी के प्रदूषण को कम करता है और सतह के जल को प्रदूषण करने में भी कम कर सकता है। इस प्रकार से मैंने कैसे अपशिष्ट पदार्थों का, कृषि से संबंधित अपशिष्ट पदार्थों का सही से प्रबंधन कैसे हो उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। अब अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।